So once again, very good morning, all of you. In class exercise, question number 9. Now, in this question, the number of solutions of the equation sin 2x plus cos 4x equal to 2. Right. आपको पूछा गया इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं. आपको ये नहीं पूछा है कि इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मतलब इसका सॉल्यूशन कौन सा है. They are not asking you what is its solution. They are not asking you what is its solution. मतलब x की कौन कौन सी वैल्यू इसका सॉल्यूशन होंगी. They are asking you number of solutions. मतलब x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है. राइट, दिस इज दे आर आस्किंग. तो पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए. ये लास्ट टाइम आपको बोल रहा था कि अच्छा क्वेश्चन है, किसी को डाउट है या नहीं, तो एक दो स्टूडेंट्स ने बोला था. ओके, एंड योर ऑप्शंस आर 0 1 2 इनफाइनाइट. इतने आपको ऑप्शंस दिए गए हैं. ठीक है, चलो पहले सोचो इसके बारे में. sin 2x प्लस cos 4x इक्वल टू 2. ऐसा कब हो सकता है sin 2x प्लस cos 4x इक्वल टू 2. राइट, ये समझने की बात है. इफ आई एम आस्किंग यू रेंज ऑफ साइन, चलो sin x की रेंज क्या है. अगर sin 3x का आउटपुट कहां से कहां पे हो सकता है. राइट, व्हाट इज द रेंज ऑफ sin 2x, what is minimum value of sin 2x, what is maximum value of sin 2x. Please give me some response. Okay, so first if you know range of sin 2x or sin x, then we can proceed. Very good. So we all know that sin 2x lies between closed interval -1 to 1. In the same way, cos 4x, right, इनपुट आप कुछ भी दे रहे हो, इनपुट आप 2x दे रहे हो या 4x दे रहे हो, नो इश्यू. आउटपुट तो उसका साइन ही मिलेगा. राइट, हियर आउटपुट विल बी cos ओनली. सो that will lie between -1 to 1 only, close interval. Is it clear? That is, minimum value of sin 2x is -1, maximum value of sin 2x is +1. Minimum value of cos 4x is -1, maximum value of cos 4x is +1. -1 is less than or equal to sin 2x is less than or equal to 1. -1 is less than or equal to cos 4x is less than or equal to 1. Now tell me, अब आपको ये बोला गया है इन क्वेश्चन दैट sin 2x प्लस cos 4x इक्वल टू 2, व्हेन इट कैन बी पॉसिबल. मैं sin 2x की -1 और 1 के बीच की ऐसी कौन सी वैल्यू लूंगा, राइट, और फॉर विच वैल्यू ऑफ -1 to 1 फॉर sin एंड विच वैल्यू फॉर -1 to 1 फॉर cos, देयर सम शुड बी 2. ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है. हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल. Very good. So this is your catchy point of this question, right? कि click point of this question. ये आपका 2 तभी हो सकता है, there is only one case, कि जब यहाँ पे आपका 1 और 1 हो. Okay. Okay. Okay, Ovish, we will think about that also. Okay. So यहाँ पे ये आपका 2 तभी हो सकता है when, sorry, right, so sin 2x plus cos 4x equal to 2 implies sin 2x is equal to 1 and cos 4x equal to 1, or I can say double implies, right, because if and only if condition आएगी. Now here OVC is suggesting one thing, sir. If we write cos 4x is 1 minus 2 sin square 2x, okay, let us see. Okay, so yes, Abhiram is also suggesting same. So see over here. So here the another way of doing this question is, ये तो ऑलरेडी हमारा चल ही रहा है, इस मेथड से तो अभी हम करेंगे, पिक्चर बाकी है. तो ये मेथड से आप साइन cos 4x को कन्वर्ट करोगे. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ cos 2x. बीच बीच में जो भी फॉर्मूला होगी वो मैं ऐसे ब्लू मार्कर से लिखूंगा. सो फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा, वी ऑल नो दैट इन टर्म्स ऑफ साइन, क्योंकि उसके बगल में साइन है, 1 minus 2 sin square theta. Okay, so if I write formula of cos 4x, okay, that is cos 2 times 2x,
इट विल बी 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर 2x। ओके, ये उसकी फॉर्मूला होगी, cos 4x की फॉर्मूला। अगर आप cos 4x की फॉर्मूला यहाँ पे रखोगे, so your equation will be converted into one quadratic equation which is having variable sin square 2x. So it will be converted to sin 2x plus cos 4x is 1 minus 2 sin square 2x equal to 2. So सारी चीजें उस तरफ ले जाओ, तो 2 sin square 2x minus sin 2x plus 2 minus 1 plus 1 equal to 0. So this is one quadratic equation जिसका variable sin 2x है, राइट। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हो? पहले चेक करो, 2 इंटू 1 2 के फैक्टर ऐसे निकालोगे प्लस करके -1 है, पॉसिबल ही नहीं है। देन वी कैन गो फॉर डिस्क्रिमिनेंट। b is -1, a is 2, c is 1, 1 -8 -7 which is less than 0 implies no real roots, राइट। मतलब नो रियल रूट्स, मतलब इसके रूट्स क्या है? sin 2x implies sin 2x की कोई वैल्यू ही नहीं होगी पॉसिबल, सो x की कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं होगी। सो दिस इज अनदर वे, राइट। ये मेथड से आप कर सकते हैं, और हम जो कर रहे थे उसको कंटिन्यू करके देखते हैं कि वहां से हमें क्या क्या सॉल्यूशन मिल सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वन वे, राइट, और सिंपलेस्ट वे, आई कैन से इजीएस्ट वे फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चल। सो अब हम जो कर रहे थे उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। So sin 2x is equal to 1 and cos 4x is equal to 1. Right, we are having these two. If I can include here also. Yes, okay, good. Now see, आप कंटिन्यू करते हैं। So sin 2x is equal to 1 and cos 4x is equal to 1. यहाँ से आप कंटिन्यू कर रहे हैं। चलो, if sin 2x is equal to 1, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? जनरल सॉल्यूशन आपको याद होगा, अगर sin 2x equal to 1 है तो पहले 1 को आपको sin के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। एंड हाउ? sin अल्फा आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि अल्फा आपका -π/2 से π/2 के बीच में हो। सो व्हाट यू कैन राइट 1 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स? sin 1, मतलब 1 को sin अल्फा, अल्फा क्या होगा? 30 नहीं होगा ना, sin 31 नहीं होता है, sin 30 इज हाफ। रेडियन में आपको लिखना है स्टूडेंट्स। साइन के लिए अल्फा कहाँ पे होता है? -π/2 से π/2। सारी चीजें याद रखनी है आपको। ओके, यस, सो इट विल बी π/2, राइट। चलो, रेज योर हैंड। सो इफ sin 2x इज इक्वल टू sin π/2, अब यहाँ पे मुझे x को लिखना है। सो व्हाट आई कैन राइट? इफ sin x इक्वल टू sin अल्फा, तो मैं x को क्या लिख सकता हूँ? हु विल टेल मी? कृष्णा, कृष्णा अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी। यस सर। हाँ कृष्णा, अगर sin x इक्वल टू sin अल्फा है तो मैं x को क्या लिख सकता हूँ? व्हाट इज इट्स फॉर्मूला, जनरल सॉल्यूशन? Sir, can you repeat once again, sir? Okay, even I'm writing this question. If sin x equal to sin alpha, समझना। If let us write formula with blue. So if sin x equal to sin alpha, so what is its general solution? Its general solution x is equal to, तीन जनरल सॉल्यूशन देखे थे ना, sin, cos and tan। Yes sir. बोलो जल्दी जल्दी। Yeah sir, yes sir. Sir, याद नहीं आ रहा है? n pi plus minus n. ओके, बस। चलो, और कोई? रेज योर हैंड। So according to Krishna, it is n pi plus or minus n.
चलो रौनक, टेल मी, इज इट राइट? Sir, हाँ. no, sir. So what is the right answer? Sorry, sir. N pi plus minus 1 to the power n alpha. Okay. So n pi plus minus 1 to the power n alpha. Okay. Okay. So ये चीज आपको कृष्णा वापस लिखनी है, राइट? अगेन 10 टाइम्स. ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है? Yes, sir. तो जब भी हम फॉर्मूला गलत होती है लिखना है और इसी तरीके से याद रहेंगी. ओके. जिसको भी याद नहीं हो प्लीज लिख लो. सो 2x is equal to n pi plus minus 1 to the power n, and what is our alpha over here? Alpha is pi by 2, isn't it? So 2x will be equal to n pi plus minus 1 to the power n. Alpha is what? Alpha is your pi by 2. Is it clear? So now what we want? We want x. So here our x will be equal to 2, यहाँ पे divide हो जाएगा, n pi by 2 plus minus 1 to the power n pi by 4. Is it clear? So n pi by 2 plus minus 1 to the power n pi by 4. This is one possible answer. चलो अब दूसरा आंसर चेक करते हैं. फॉर cos 4x इक्वल टू 1. ओके. और सिंस x दोनों में कॉमन है तो फिर हमें कॉमन आंसर चेक करना है. ओके. ना चलो व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन? पहले जनरल सॉल्यूशन के लिए मुझे 1 को लिखना पड़ेगा. सो फॉर साइन माई अल्फा शुड बी माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2. फॉर कॉस माई अल्फा शुड बी, टेल मी कहाँ पे होगा? इफ cos 4x इज इक्वल टू 1 तो अल्फा क्या होगा? Your alpha should belongs to, for cos, let me make this easy for you, 0 to pi. तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? cos. Riya, can you tell me if it is alpha belongs to 0 to pi? So इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? cos 0. चलो, who will tell me general solution of cos? Right. If cos x is equal to cos alpha, then its general solution x will be equal to Ronak. Ronak, can you speak? Sir, x is equal to 2n pi plus or minus alpha. Very good. 2n pi plus or minus alpha. Okay. So same यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे. So therefore 4x is equal to 2n pi plus or minus alpha. What is alpha over here? 0. So therefore 4x is equal to 2n pi. So here for x will be equal to 2n pi by 4. Therefore x is equal to n pi by 2. Okay. X will be equal to n pi by 2. Is it clear now? Okay. Now, अब x आपका यहाँ पे दोनों होना चाहिए. मैंने आपको बोला था कि कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप ऐसे दो अलग फ्रैक्शन कर रहे हो तो बीच में और आ रहा है या एंड आ रहा है. तो पहले मुझे बोल दो यहाँ पे कंडीशन क्या आएगी? यहाँ पे और की कंडीशन है कि एंड की कंडीशन है? व्हाट इज कंडीशन ओवर हियर? दिस कंडीशन इज इंपॉर्टेंट. ये दिखाया है ना मैंने आपको. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स कि बीच में और है या एंड है. ओके. सो एंड है यहाँ पे, राइट? क्योंकि दोनों 1 होंगे तभी उनका समेशन 2 हो सकता है. यस. एंड मतलब दोनों का इंटरसेक्शन लेना है. तो पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से वैल्यूज हमें मिल रहे हैं. तो उसके लिए हम x की अलग अलग वैल्यू रखते जाएंगे. ओके. n की अलग अलग वैल्यूज रखते जाएंगे. सो फ्रॉम हियर वी ऑल नो दैट हियर n बिलोंग्स टू i. वो आपको दोनों जगह लिखना पड़ेगा. ओके. सो फ्रॉम हियर योर x कैन बी, अगर मैं n की वैल्यू 1 2 3 रखते जा रहा हूँ. सो फर्स्ट फॉर n इक्वल टू 1 इट इज पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4. तो आपका पाई बाई 4 हो जाएगा. ठीक है. फॉर n इक्वल टू 2 इट इज पाई प्लस पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 हो जाएगा. फॉर n इक्वल टू 3 इट इज 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4. तो वो सब आप रफ में कर सकते हैं. 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4. तो ये आपका हो जाएगा 6 पाई माइनस पाई, दैट इज पाई पाई बाई 4. अब यहाँ से आपको एक पैटर्न मिल गई कि दो दो ऐड हो रहे हैं बस. 1 से 3, 3 से 5,
फिर डेफिनेटली 7, 7 के बाद 9, इस तरीके से चलता जाएगा। इसी तरीके से नेगेटिव साइड भी चलेगा, बट फॉर कंपैरिजन पर्पस मैं अभी सिर्फ पॉजिटिव ले रहा हूँ। इन द सेम वे हियर, यहाँ पे तो क्लियर ही है, इट इज पाई बाई टू। अब n पाई बाई टू है तो पाई बाई 1 पाई बाई टू, फिर 2 पाई बाई टू विल बी पाई, राइट। 3 पाई बाई टू विल बी 3 पाई बाई टू, 4 पाई बाई टू विल बी 2 पाई, राइट। 5 पाई बाई टू, 6 पाई बाई टू विल बी 3 पाई, इस तरीके से चलता जाएगा, isn't it? चलो इन दोनों में कुछ भी कॉमन है, टेल मी। Any number common over here? Right. No. ये सारे आपको पाई बाई 4 पाई बाई 4 वाले मिल रहे हैं, राइट। और ये वाले सारे आपको पाई पाई बाई 2 पाई पाई बाई 2 वाले मिल रहे हैं। ओके, सो हियर there is no common x. So no solution of given expression. Now, so I'm repeating this last part once again, समझना। So in this last part, see over here, x की अलग अलग वैल्यू मैं रख रहा हूँ, इट इज n पाई बाई 2 प्लस माइनस 1 टू द पावर n पाई बाई 4। x की अलग अलग वैल्यू मुझे कैसे मिलेगी, n की आप अलग अलग वैल्यू अंदर पुट करें, राइट। n बिलोंग्स टू i, हम 1 2 3 सब रख रहा हूँ। सो अलग अलग 1 रखा तो मुझे पाई बाई 4 मिला, 2 पे 3 पाई बाई 4 मिला, इन 3 आई गॉट 5 पाई बाई 4। So from these 3 I got its sequence that we are adding just 2 in its numerator. So after 1 we got 3 pi by 4, then 5 pi by 4, then definitely it will be 7 pi by 4, then it will be 9 pi by 4, and like that we'll get series of x or all the values of x for this expression. In the same way, for x is equal to n pi by 2, if I find, so for n equal to 1 it is pi by 2, n equal to 2 it is pi, n equal to 3 it is 3 pi by 2, n equal to 4 it is 2 pi, n equal to 5 it is 5 pi by 2, n equal to 6 it is 3 pi, and so on. So here now what is the condition between them? Between them condition is AND, right? Condition is AND means we have to take intersection, or we have to take common numbers. X should be both, right? So x should be here your this pi by 4 also, x should be pi by 2 pi also, but both are not possible at a time. So here there is no common value of x possible. So number of given x, so there is no solution of given expression. Is it clear now? Shall we move to homework questions now? Homework 8, 11, 12, okay? Now see over here. So homework question 8. If 0 less than or equal to x less than or equal to pi by 2. Homework question number 6 also. Okay, so after this 8 we will take question 6. 81 sine square x, 81 to the power sine square x plus 81 to the power cos square x is equal to 30. Then x equal to blank. Okay, और अलग अलग आपको ऑप्शंस दिए गए। सो डेफिनेटली अगर आपको ऐसा बोला जाए sin x is something, cos x is something, sin x plus cos x is something, तो वहां से आप x निकाल सकते हो, राइट। बट यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं बोला है। यहाँ पे डायरेक्ट आपको 81 टू द पावर sin square x प्लस 81 टू द पावर cos square x दिया है। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके सबसे पहले आपको sin x और cos x का फॉर्म सेपरेट लाना पड़ेगा।
चलो वो कैसे ला सकते हैं, तो यहाँ कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं बोलो। स्टेप बाय स्टेप हम सिंप्लीफाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे, राइट। घबराने की जरूरत नहीं है, विल गो स्टेप बाय स्टेप। सो सबसे पहले साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है। कौन सी फॉर्मूला मैं सबसे पहले यूज कर सकता हूँ ताकि वो दोनों एक्सप्रेशन कोई भी एक में कन्वर्ट हो जाए। आइदर यू कैन कन्वर्ट देम इन साइन स्क्वायर एक्स, आइदर यू कैन कन्वर्ट देम इन कॉस स्क्वायर एक्स। वेरी गुड। Sin square x plus cos square x equal to 1. So therefore cos square x can be written as 1 minus sin square x. Okay, कोई भी एक को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। Either you convert sin square into cos square or cos square into sin square. So here it will become 81 to the power sin square x plus 81 to the power cos square आपका हो जाएगा 1 minus sin square x is equal to 30. So therefore 81 to the power sin square x प्लस, अब ये 81 के पावर में ही है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 81 टू द पावर 1 डिवाइड बाय 81 टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स, इजंट इट। कैसा लिख सकता हूँ, बिकॉज इफ बेस सेम देयर इज प्रोसेस ऑफ डिवीजन, देन व्हाट यू विल डू, सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्सपोनेंट्स। So 81 to the power 1 divided by 81 to the power sin square x. Okay. No, we cannot directly add powers, right? If we are having multiplication over here, right? अगर यहाँ पे multiplication है, तभी हम directly powers को add कर सकते हैं. If it is x to the power a, if it is x to the power m into x to the power n, तो x to the power m plus n हो सकता है, right? Here it is x to the power m plus x to the power n. So there is no property for this. This cannot be equal to x to the power m plus n. Is it clear? Okay. हाँ, ऐसा कंफ्यूजन होता है। चलो, हाँ करिश्मा बोलो क्या डाउट है। हाँ, यस आर्यन, वी विल डू दैट ओनली नाउ। हाँ करिश्मा, व्हाट इज द डाउट, कहाँ पे डाउट है आपको, इन विच स्टेप। Miss Karishma, please ask your doubt so that we can proceed. Okay, so हम प्रोसीड कर रहे हैं। मुझे लग रहा है शायद आपको यहाँ पे डाउट होगा, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। So 81 to the power 1 minus sin square x, it is 81 to the power 1 divided by 81 to the power sin square x. यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की? So we have used this property, x to the power m minus n. It can be written as x to the power m divided by x to the power n. Okay. Now see over here. अब यहाँ पे हमारे पास है 81 to the power sin square x. Yes. So therefore simplify करेंगे तो it is 81 to the power sin square x whole square, if I am taking LCM, plus this 81 is as it is, whole divided by 81 to the power sin square x उस तरफ चला जाएगा, तो it is 30 into 81 to the power sin square x. Okay. अब अगर मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, so this is 81 sin square x whole square, ये वाली टर्म यहाँ पे आ जाएगी, so it will become minus 30 81 to the power sin square x plus 81 equal to 0. अब इसे आप ऑब्जर्व करो, so here 81 to the power sin square x,
यहाँ पे उसकी एक पावर है, यहाँ पे उसकी दो पावर है. तो दिस होल इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ 81 to the power sin square x. So here we'll assume that let 81 to the power sin square x is equal to y. Okay. So therefore this equation will be converted to y square minus 30y plus 81 equal to 0. Is it clear? चलो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. 81 के ऐसे फैक्टर्स निकालो कि प्लस करके 30 आए. Is it possible? 9 9 से 81 वो तो नहीं होगा. 3 3 से 9. अब यहाँ पे देखो, this will be your 9 3 से 27. 27 and 9. Okay, 27 and 3. So 27 plus 3 is 30. और minus 30 हो रहा है, तो ये आपका minus 3 and minus 27. And wait here, some student is asking to repeat from third step. Okay. So third step, first, second, third. Okay. So I'm repeating from here. उसके बाद आगे बढ़ेंगे, देख लो. So here 81 to the power 1 minus sin square x. If I'm having x to the power m minus n, I can write it as x to the power m by x to the power n. So it can be written as 81 to the power 1 divided by 81 to the power sin square x. So here, if I simplify, then it will become 81 to the power sin square x whole square plus 81 to the power 1 as it is equal to 30 into 81 to the power sin square x. So 81 to the power sin square x whole square, ये पूरी टर्म इधर आ जाएगी तो माइनस हो जाएगी, plus 81 equal to 0. Now, if you observe this carefully, this whole equation is one type of quadratic equation in 81 to the power sin square x, because first we are having square of this term, then we are having first power of this term, then there is constant term. So if I am taking 81 to the power sin square x as y, so this will become y square minus 30y plus 81 equal to 0. Is it clear now, Anurag? Yes, Shall we sir. proceed now? So this will be y minus 3, y minus 27 equal to 0. See students, if I am clearing your doubts, please give me a response कि अभी वो clear हो गया है नहीं. क्योंकि एक बार वो आप मुझे रिस्पॉन्स दे दोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि अगर आपको क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ें. करिश्मा वाज अर्लियर आस्किंग दैट शी इज हैविंग सम डाउट, बट जब मैंने पूछा तो कोई रिस्पॉन्स नहीं. अनुराग, मैंने पूरा रिपीट किया. नाउ देयर इज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड. दैट इज इट क्लियर टू यू और नॉट? सर रिस्पॉन्स किया सर, माइक ऑन करके ये अच्छा, बोला था. ओके, पता नहीं चला. टाइप इन चैट बॉक्स. और माय वॉल्यूम इज लो आई गेस. ओके, सर. हाँ, थैंक यू. सो हियर y इज इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 27. जैसा कि मैंने आपको बोला था, कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि बीच में और आ रहा है कि एंड आ रहा है, राइट? सो इट इज y इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 27. यहाँ पे और आएगा. ओके, सो व्हाट इज अवर एम? वी हैव टू फाइंड x. ओके, सो इफ y इक्वल टू 3, व्हाट इज अवर y? 81 to the power sin square x is y. So therefore 81 to the power sin square x is equal to 3, or 81 to the power sin square x is equal to 27. जब भी आपके पास ऐसे केस आते हैं, राइट, आप क्या करते हैं समझो. दोनों जगह पे हम बेस सेम करेंगे और एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करेंगे, इजंट इट? सो 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 to the power 4 sin square x as it is. वो होल पावर में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. इट विल बी 3 to the power 4 sin square x. Okay, now is equal to 3. Okay, on the other hand, or 81 to the power sin square x. 81 आपका क्या हो जाएगा? 3 to the power 4 only. 3 to the power 4 sin square x is equal to 27. 27 is 3 cube.
Is it clear? So therefore, if I compare these two, so here its power is 1. So 4 sin square x is equal to 1. Or this line is for or. ठीक है, ये पहले लिख दिया तो वही कंटिन्यू हो रहा है. And here 4 sin square x is equal to 3. So here sin square x can be equal to 1 by 4 or sin square x can be equal to 3 by 4. Is it clear now? Okay, what is our aim? हमें तो अभी sin x फाइंड करना है, हमें x फाइंड करना है, isn't it? कि 0 और pi by 2 के बीच में x की वैल्यू क्या होगी. चलो, now if sin square x is 1 by 4, then sin x can be plus or minus half, क्योंकि स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस और माइनस स्क्वायर रूट होता है, isn't it? So it will be plus or minus 1 by 2 in first case. On other hand, sin square x is 3 by 4. So sin x can be equal to plus or minus root 3 by 2. In the question, it is given that your x is between 0 to pi by 2. Now, since 0 less than or equal to x less than or equal to pi by 2, it is first quadrant. So all sin x and cos x, or in both the terms, sin x cannot be negative, right? So sin x cannot be negative. In first quadrant, all trigonometric ratios are positive. So therefore, only one value is possible, that is sin x is equal to half or sin x is equal to root 3 by 2, isn't it? So sin x is equal to half or sin x is equal to root 3 by 2. चलो, अब sin x half कब होता है? When your sin x is half. जनरल सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं निकालना है, समझना. यहाँ पे आपको बस फर्स्ट क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन चाहिए. यू वांट ओनली सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट ओवर हियर. सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin x आपका हाफ कब होता है? pi by 6. So therefore x is equal to pi by 6 और x is equal to pi by 3. और यहाँ पे और है, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? एंड. ओके, सो इफ इट इज एंड, आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा. इफ इट इज और, तो दोनों में से कोई भी आंसर पॉसिबल है. इट इज यूनियन. तो अब ऑप्शन में आपको देखना पड़ेगा आपको क्या आंसर दिया गया है. सो योर फाइनल आंसर विल बी x is equal to pi by 6 और x equal to pi by 3. So both answers are acceptable. Okay. So here your option A contains pi by 6, B contains pi by 2, C contains pi by 4, D 0. तो options में सिर्फ pi by 6 दिया है. So according to options, our answer will be A. Is it clear? Right. और आपको ऐसा भी दिया जा सकता है. ऑप्शन A में pi by 6, B pi by 3, ऑप्शन C A और B, ऑप्शन D A and B. Right. A and B तो पॉसिबल ही नहीं है. None of this. Okay. तो वो केस में ध्यान रखना है. जब भी कोई भी क्वेश्चन में नन ऑफ दिस आए, वो वाले क्वेश्चन संभल के करने हैं फॉर जेई. नन ऑफ दिस वाले क्वेश्चंस एकदम आराम से. एंड बीच वाली कंडीशन ऑलवेज आपको ध्यान रखनी है. और कब आएगा? यहाँ पे a इंटू बी इक्वल टू 0 है, तो a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0, ऐसा केस होता है. ओके. इन अ सेम वे यहाँ पे क्यों एंड आया? क्योंकि बीच में प्लस था. ये 1 होगा तभी वो 2 होंगे. इज इट क्लियर? शैल वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? एनी डाउट इन क्वेश्चन 8? अच्छा क्वेश्चन था, सबको क्लियर हुआ? कि एक बार वापस मैं रिपीट करूं पूरा का पूरा क्वेश्चन स्पीडली, मतलब स्पीड में? हाँ, ओके श्रीहरि. हाँ, ओके. सो आई एम रिपीटिंग दिस. ओके, एक बार समझ लो वापस. Now see, so here my x belongs to first quadrant. 81 to the power sin square x plus 81 to the power cos square x equal to 30. Now they are asking what will be value of x, right? So सबसे पहले तो हमें सिंप्लीफाई करके 81 और वो सारी पावर को हमें दूर करना पड़ेगा. कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा. So here we are having sin square, here we are having cos square. Either you can convert them into sin or either you can convert them into cos.
So we all know that sin square plus cos square is one basic formula. So our cos square will be 1 minus sin square. So this cos square can be written as 1 minus sin square. So it will be your 81 to the power 1 divided by 81 to the power sin square. So it is your 81 to the power sin square plus 81 to the power 1 divided by 81 to the power sin square equal to 30. So if I simplify, this will become 81 to the power sin square whole square, okay, plus 81 is equal to 30. और यहाँ पे whole divide by 81 to the power sin square आएगा, वो उधर जाएगा तो multiply हो जाएगा, isn't it? यहाँ पे ये हमने कैसे लिखा, x to the power m minus n equal to x to the power m by n. And some student was asking that, sir, can't we add here power directly? No, because here it is plus sign in between them. If you are having multiplication sign in between them, then you can directly add powers. If there is plus sign between them, there is no property of any process on powers. Okay, so here आप देख सकते हैं कि ये पूरा 81 टू द पावर sin square x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा. उसके लिए मैं इसको पहले लेफ्ट हैंड साइड पे कन्वर्ट कर रहा हूँ. So this will be your 81 to the power sin square x whole square minus 30 into 81 to the power sin square x plus 81 equal to 0. So if you'll observe this term, 81 to the power sin square x का पहले यहाँ पे स्क्वायर है, फिर 81 to the power sin square x as it is है, और फिर कांस्टेंट टर्म है. So it is ax square plus bx plus c. तो उसके लिए मैंने 81 to the power sin square x को y ले लिया. तो ये इक्वेशन मेरा बन गया y square minus 30y plus 81 equal to 0. Now can you see this? ये आपका पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया. Right, this is your quadratic equation now. Okay. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुझे सॉल्यूशंस निकालने हैं. So I will factorize 81 such that sum of their factors should be 30. So 9 9s are, फिर ये 3 3s are, 9 3s are 27 and 3. If I add 27 and 3, their summation is 30. And we require minus 30, so it will be minus 3 and minus 27. Since leading coefficient is 1, I can write directly y minus 3 and y minus 27. So, but यहाँ पे कुछ स्टूडेंट एग्जाम में क्या गलती करते हैं, सर लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है तो डायरेक्टली वो y इक्वल टू माइनस 3 लिख देते हैं. डायरेक्टली वो लिख देते हैं सर y इक्वल टू माइनस 3 एंड y इक्वल टू माइनस 27. इट इज रॉन्ग. अगर लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है तो आप डायरेक्टली y माइनस 3 एंड y माइनस 27 लिख सकते हैं. अगर आप y इक्वल टू माइनस 3 लिख रहे हैं then it is wrong. y equal to minus 3 आप लिख रहे हैं तो it is wrong. y equal to minus 27 लिख रहे हैं तो it is wrong. इसलिए शॉर्टकट भी यूज करो बट नॉर्मल, ज्यादा नहीं. ओके, सो हियर योर y is equal to 3 और y equal to 27. y आपका क्या है, 81 to the power sin square x. सो अब यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करें तो दोनों जगह 3 कॉमन है बेस में. सो 81 को मैं लिख सकता हूँ 3 to the power 4. इन सेम वे यहाँ पे 81 को मैं लिख सकता हूँ 3 to the power 4. So if I compare their powers, because on both the sides my base are same, so 4 sin square x is equal to 1 and 4 sin square x is equal to 3. So यहाँ पे sin square x आपका हो जाएगा 1 by 4, यहाँ पे sin square x आपका हो जाएगा 3 by 4. So here sin x will be equal to your plus or minus half, sin x will be equal to your plus or minus root 3 by 2. So sin x is half, sin x is root 3 by 2. क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव वैल्यू हम नहीं ले सकते. और फिर वहां पे हमने देख लिया तो पाई बाई 6 और पाई बाई 3 बोथ आंसर्स कैन बी पॉसिबल. इज इट क्लियर? आपको एमटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है? मेजर टेस्ट आपकी पहली कब होने वाली है? अवंती में मेजर टेस्ट आपकी कब से शुरू होने वाली है? आई थिंक जून एंड में शुरू होने वाली थी शायद. राइट, June. What is the syllabus? You know about that? क्या 12 जून तो हो गई है. कौन कौन से चैप्टर है मैथ्स में आपको पता है? M1, M2, M3 है कि M2, M3, M4 है? M1 इंक्लूडेड है? फंडामेंटल ऑफ मैथ्स. ओके, M1 इंक्लूडेड है पक्का? ओके, ठीक है, तो एक बार देख लेंगे. ओके, वो कौन सा शेड्यूल फॉलो कर रहे हो एग्जैक्टली? आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज बिटवीन 2-3 शेड्यूल. मेरे पास 2-3 शेड्यूल हैं.
आपके एमटी और टेस्ट की। तो एक सबसे पहले जो सर ने ग्रुप में डाला था वही बोल फॉलो कर रहे हैं। सेशन सर ने बोला एक मिनट। हाँ, इसीलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप कौन सा शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं? जो विष्णु सर ने एकदम पहले भेजा था ग्रुप में, वही? ओके, ठीक है। तो आज मैं उनसे एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि ओके, on 5th June. Okay, what is on 5th June? चलो शुरू कर दें। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ होमवर्क। ओके, सेशन सर ने ग्रुप में ऑलरेडी भेजा है 5th June। ओके वेट, सो लेट मी सी दिस ग्रुप। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एमटी। आपका फर्स्ट एमटी होगा, सो मजा आएगा, राइट? अगर मैं यस्टरडे की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट यस्टरडे वेट सिस्टम, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। ओके, कोई कुछ नहीं कर सकता मीन्स फिर कोई कुछ करा नहीं सकता, मतलब। क्वेश्चन नंबर 6, the number of integral values of k for which the equation 7 cos x plus 5 sin x equal to 2k plus 1 has a solution. Okay, so here we have to find number of integral or integral, आप जो भी pronunciation करो, number of integral solution of k for which 7 cos x plus 5 sin x is equal to 2k plus 1 has a solution. तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं। नाउ टेल मी number of integral solutions of k for which 7 cos x plus 5 sin x equal to 2k plus 1 has a solution. तो वो k के बारे में बाद में सोचेंगे, पहले इसके लिए क्या करें बोलो। इफ इट इज 7 cos x plus 5 sin x equal to 2k plus 1, अगर आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है, सो हाउ यू कैन प्रोसीड, आप पहले क्या कर सकते हो यहाँ पे? चलो यही क्वेश्चन है ना, कि कोई गलत क्वेश्चन? तो होमवर्क क्वेश्चन 6, राइट? इसी में डाउट था ना? Okay. Yes. Yes. So Aryan is suggesting to divide the entire equation with 84. Abhiram is suggesting to find maximum and minimum. Pranjal is also suggesting same. Okay. Oh, sorry. Root 74. So समझते हैं यहाँ पे. So you all know that whenever you are having expression like this form, a cos x plus b sin x, then we are having its minimum and maximum value. So definitely this value 2k plus 1 वो भी आपकी उस minimum और maximum value के बीच में होगी, समझना. So here a cos x plus b sin x. So a is equal to 7, b is equal to 5. Now under root a square plus b square. This will be equal to under root a square, that is 7 square plus 5 square. It is 49 plus 25. It is 74. So its minimum value is between minus root 74 to plus root 74. So we all know that a plus b, a cos x plus b sin x, its minimum value is minus under root a square plus b square, and its maximum value is plus under root a square plus b square. Okay. Now, so therefore, this is 7 cos x plus 5 sin x. It is between under root 7 square plus 5 square, and here it is minus under root 7 square plus 5 square.
So therefore minus under root, this is your 74 less than or equal to, now 7 cos x plus 5 sin x, it is nothing but 2k plus 1. So 2k plus 1 is less than or equal to under root 74. यहाँ पे ये स्विच हो गया कलर, नो इश्यू, नेक्स्ट पे देखेंगे. चलो, so minus root 74 is less than or equal to 2k plus 1 is less than or equal to root 74. चलो अब यहाँ से हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं समझना. क्या रूट 74 आपके रूट 74 का स्क्वायर रूट क्या आपको पता है? नो. ओके, तो अगर मुझे यहाँ पे कंपेयर करना हो तो मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ? आपको के ऐसा बोला है नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज ऑफ के तो आपका इंटीजर ही हो सकता है. ओके, तो रूट 74 तो के की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं होगी. 2k plus 1 की मिनिमम वैल्यू रूट 74 तो पॉसिबल ही नहीं होगी. अगर आप स्क्वायर रूट देखें, so you all know that 8 square is 64. स्क्वायर रूट ऑफ 64 आपका 8 हो जाएगा. उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 81 आपका 9 हो जाएगा, isn't it? तो स्क्वायर रूट ऑफ 74 आपका इन दोनों के बीच में होगा, राइट? सो स्क्वायर रूट ऑफ 74 वो डेफिनेटली आपका 8 से बड़ा होगा और 9 से छोटा होगा, राइट? बट हमें यहाँ पे बस उसकी अब समझना है यहाँ पे. सो स्क्वायर रूट ऑफ 74, राइट, इट विल बी ग्रेटर देन 8. And is it clear na? 74 is greater than 64 and it is less than 81, right? Yes. So square root 74 आपका 8 से बड़ा होगा, okay, और 9 से छोटा होगा, isn't it? So अब हमें देखना है कि k की वैल्यू कौन सी हो सकती है. तो it will be less than 9, अगर मैं यहाँ पे less than 9 रख रहा हूँ तो, and it will be, its minimum value will be ग्रेटर देन -9. इक्वल टू नहीं होगा, समझना, ठीक है? तो -9 इज लेस देन और इक्वल टू 2, सॉरी नॉट लेस देन और इक्वल टू, -9 लेस देन 2k plus 1 इज लेस देन 9. एक और भी मेथड है जो अभी स्टूडेंट्स जो मुझे सजेस्ट कर रहे हैं तो वो भी हम करेंगे. ओके, पहले ये देख लो. सो +1 को अगर मैं ले लूँ तो -10 लेस देन 2k लेस देन 8. ओके, सो -5 लेस देन k लेस देन 4. तो k आपका क्या हो सकता है समझना, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3. तो k आपका हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज आर पॉसिबल. आपको यहाँ पे ये पूछा ना, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k. ओके, सो देयर आर 8 वैल्यूज पॉसिबल फॉर k. ओके, जहाँ पे आपको ये आंसर मिलेगा. दोज वैल्यूज आर 0 ±1 ±2 ±3 एंड -4. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आप दो तरीके से आगे बढ़ सकते हो. आइदर यू कैन कंपेयर विद दिस 9 और आप 8 से भी कंपेयर कर सकते हो. तो 2k plus 1 आपका रूट 74 से कम है, तो कौन सी वैल्यू उसकी हो सकती है? सिंस इट इज इंटीजर, आउटपुट भी इंटीजर ही होगा. तो रूट 74 है वो इंटीजर नहीं है, तो उससे छोटी वैल्यू इंटीजर कौन सी आएगी? रूट 64, दैट इज 8. तो यहाँ पे आप -8, राइट, यहाँ से आप -8 लेस देन और इक्वल टू 2k plus 1 लेस देन और इक्वल टू 8 लेके भी कर सकते हैं. तो आप इस तरीके से भी जा सकते हैं और इस तरीके से भी जा सकते हैं. इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. तो वहां पे भी सेम आंसर मिलेगा आपको, राइट? बिकॉज हियर इट इज लेस देन और इक्वल टू एंड हियर इट इज लेस देन. इज इट क्लियर? शैल आई रिपीट दिस वंस अगेन? वापस रिपीट करूं? So समझना. So number of integral solutions of k for which 7 cos x plus 5 sin x equal to 2k plus 1, okay, has a solution. So उसके लिए सबसे पहले 7 cos x plus 5 sin x. If we are having a cos x plus b sin x, then its value lies between -√a square plus b square to +√a square plus b square. So definitely here 7 cos x plus 5 sin x will lie between √7 square plus 5 square to positive to -√7 square plus 5 square. It is -√74 to +√74. Since k is having only integer values, so 2k plus 1 will also be integer. So root 74 हमें पता है it is less than 9, right? It is less than 9. So यहाँ पे greater than -9. तो अगर मैं डायरेक्टली कंपेयर करूँ तो अब इक्वल टू तो नहीं हो सकता, डायरेक्टली लेस देन ही आएगा. सो इट इज लेस देन. यहाँ पे भी इक्वल टू नहीं हो पाएगा, डायरेक्ट ग्रेटर देन. सो अब +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा. सो इट विल बी -10 लेस देन 2k लेस देन 8. 2 से डिवाइड कर दूं तो -5 लेस देन k लेस देन 4. अब इसके बीच की सारी वैल्यूज तो -5 और 4 तो नहीं होगा. इट इज -4 -3 -2 -1 0 1 2 3. इज इट क्लियर? ओके,
Shall we move to next question? अब इसके बाद आपको कौन से क्वेश्चन में डाउट है? So this was your homework question 6, 8. अब आपको डाउट है 11 and 12. So let us see question 11 and 12. Okay. So अभी एक मेथड ही जनरलाइज कर दी है कि क्वेश्चन हम लिखेंगे रेड पेन से, right? That if I'm writing any question, that question will be written with red pen only. Solution black pen से करेंगे, right? और बीच में जो भी फॉर्मूला और कंसेप्ट की जरूरत होगी जिसको हम यूज करेंगे वो ब्लू पेन से होगा. इज इट क्लियर? तो एक ये थोड़ी स्टैंडर्ड सिस्टम फॉलो होगी. ओके ओके सॉरी वेट. हाँ ओके. तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा. सो वेन एवर इट इज ब्लू कलर मीन्स आप समझ सकते इट इज आइदर फॉर्मूला और कंसेप्ट. रेड कलर क्वेश्चन, ब्लैक कलर मीन्स सॉल्यूशन. सो क्वेश्चन नंबर 11. Show that e to the power sin x minus e to the power minus sin x minus 4 equal to 0 has no solution. I think अब आपके लिए easy हो जाएगा. e to the power sin x minus e to the power minus sin x minus 4 equal to 0 has no solution. ये हमें दिखाना है. Okay. So now I think this will be easy for you because हमने 81 to the power sin square x वाला already किया है. यहाँ पे तो already sin x ही दिया है. So who will tell me first step? अगर ये e to the power sin x है माइनस e टू द पावर माइनस sin x को मैं क्या लिख सकता हूँ? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. e टू द पावर माइनस sin x क्या 1 अपॉन e टू द पावर sin x नहीं होगा? ओके यस. सो इट इज 1 अपॉन e टू द पावर sin x माइनस 4 इक्वल टू 0. चलो अब हम सिंप्लीफाई करते हैं. तो e टू द पावर sin x से पूरा इक्वेशन हो जाएगा. तो e टू द पावर sin x इंटू e टू द पावर sin x, e टू द पावर sin x होल स्क्वायर माइनस 1 minus 4 e to the power sin x whole divided by e to the power sin x equal to 0. So therefore e to the power sin x whole square minus 4 e to the power sin x minus 1 equal to 0. चलो e to the power sin x में क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? कैन यू से दिस? यहाँ पे e to the power sin x का स्क्वायर है. ओके और यहाँ पे e to the power sin x की एक पावर है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है. So it is quadratic equation in e to the power sin x. So can we take e to the power sin x as y? Okay. So if I consider let e to the power sin x is equal to y. So now our quadratic equation will become y square minus 4y minus 1 equal to 0. तो ये आपका y माइनस, अब चलो इसके फैक्टर 1 के ऐसे फैक्टर निकालो कि माइनस करके 4 आए. तो वैसे तो पॉसिबल नहीं है. So here a equal to 1, b equal to minus 2, c equal to minus 1. Delta is square root b square minus 4ac. Right? Wait 1 minute. Delta is only b square minus 4ac. Discriminant. So b square minus 2 whole square minus 4. A is 1, c is minus 1. Minus 2 whole square is 4, minus minus plus 4. 4 plus 4, 8. So here our solution, that is y of the equation, can be written as minus b plus or minus under root delta by 2. So it is equal to minus of minus 2 because b is minus 2 plus or minus root delta plus or minus 8. b minus 4. Okay. My mistake. So b is minus 4. तो वो अगर मैं यहाँ पे minus 4 ले रहा हूँ तो minus 4 whole square, it is 16. 16 plus 4, 20. Okay. So it is equal to minus of b. What is b over here? Minus 4. Plus or minus square root delta plus or minus square root 20. Divide by 2a, 2 times 1. So minus minus plus 4 plus or minus 20. 20 को मैं 4 फाइजा लिख सकता हूँ पहले. Okay. तो ये 4 into 5 हो जाएगा.
divide by 2. Okay, so it will be equal to अगर दोनों को मैं स्क्वायर रूट दे दूँ तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो जाएगा 2, 4 प्लस और माइनस 2 √5/2, तो 2 दोनों को मिल जाएगा. सो 4/2 इट इज 2 प्लस और माइनस 2/2 √5, 2 प्लस और माइनस √5. So y is equal to 2 plus √5 or 2 minus √5. Okay. So what is y over here? Y is e to the power sin x. Okay. So therefore e to the power sin x is equal to 2 plus or minus √5 implies e to the power sin x, और नीचे के स्टेप में ही लिखते हैं e to the power sin x is equal to 2 plus √5 or e to the power sin x is equal to 2 minus √5. चलो अब क्या होगा? इफ इट इज 2 plus √5, इफ इट इज 2 minus √5, व्हाट इज अवर एम? हमें sin x फाइंड करना है. ओके, तो e वहां पे जाएगा तो क्या होगा? याद करो फर्स्ट चैप्टर, ln, राइट, log, राइट. ये e आपका उधर चला जाएगा बेस, तो वो log हो जाएगा. चलो, सो देयरफॉर हियर sin x विल बी इक्वल टू ln 2 plus √5 और यहाँ sin x आपका हो जाएगा ln 2 minus √5. अब इनको क्लियरली ऑब्जर्व करो. सो हियर अगर आप इनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, सो वी ऑल नो दैट √5 √4 is equal to 2. √5 is greater than √4 implies √5 is greater than 2, isn't it? Now, yes. So यहाँ पे आपका e to the power sin x is equal to 2 minus √5. चलो, 2 minus √5 पॉजिटिव नंबर होगा या नेगेटिव नंबर होगा? सिंस √5 is greater than 2, अगर √5 को आप उस तरफ लेके जा रहे हो तो 0 is greater than 2 minus √5 implies 2 minus √5 is less than 0. Okay, so 2 minus √5 is negative. क्या नेगेटिव नंबर का लॉग पॉसिबल है? टेल मी. और आर्यन भी एक चीज बोल रहे हैं, उसको भी हम देखेंगे एट द एंड. क्या नेगेटिव नंबर का लॉग पॉसिबल है? नो, राइट. लॉग का इनपुट ऑलवेज पॉजिटिव नंबर ही होना चाहिए. सो सिंस इट इज नेगेटिव, this log of this number is not possible. Okay, and if this is not possible, तो यहाँ पे तो आपके sin x की कोई वैल्यू ही नहीं मिलेगी. So this expression is not possible. अब ये एक्सप्रेशन को देखो. So यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? 2 plus √5. Okay, समझना, 2 plus √5. So अगर मैं 2 plus √5 कर रहा हूँ, so it is since √5 is greater than 2, अगर मैं दोनों जगह 2 को ऐड कर रहा हूँ, राइट, यहाँ पे भी मैं 2 को ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे भी ऐड कर रहा हूँ, तो ये 2 plus √5 हो जाएगा greater than 2 plus 2 implies 2 plus √5 is greater than 4, isn't it? अब मैं दोनों जगह ln ले रहा हूँ. ठीक है, मैंने आपको एक सस्पेंस दिया था कि अगर मैं लॉग ले रहा हूँ दोनों जगह, अगर लॉग का बेस लेस देन 1 है तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी. लॉग का बेस है यहाँ पे e इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.718, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी. सो ln 2 plus √5 is greater than ln 4 base e, isn't it? चलो अब मुझे ये बताओ, अगर ये sin x है तो sin x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? If it is sin x, then maximum value of sin x is 1, isn't it? Yes, sin की मैक्सिमम वैल्यू, sin आपका -1 to 1 होना चाहिए, right? So here sin x should belongs to -1 to 1, और यहाँ पे sin x आपका है implies ln 2 plus √5, it should belongs to -1 to 1. उसके मैक्सिमम मतलब -1 और 1 के बीच में होना चाहिए. बट ln 2 plus √5 को अगर आप देखो, सो ln 2 plus √5 आपका ln 4 base e से भी बड़ा है, राइट. अब ln 4 base e से भी बड़ा है मीन्स समझना, सिंस मुझे उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू से कंपेयर करना है, सो 4 क्या e से बड़ा होगा? राइट, सी ओवर हियर, बिकॉज e इज 2.718, तो क्या 4 e से बड़ा होगा? अगर 4 e से बड़ा है तो क्या ये ln e बेस e से बड़ा होगा?
राइट, इम्प्लाइज ln 2 प्लस रूट 5 वो 1 से बड़ा होगा, राइट, इट्स वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1, उसकी वैल्यू 1 से बड़ी आएगी. सो यहाँ पे आपका जो LHS है, LHS इज योर साइन एक्स, LHS आपका -1 से 1 के बीच में है, बट RHS आपका 1 से बड़ा है, तो क्या वो इक्वालिटी पॉसिबल होगी? सो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. ओके, ये ऐसा होना चाहिए, वो -1 to 1 के बीच में आना चाहिए, बट हो नहीं रहा है. इज इट क्लियर? या अगर दूसरे तरीके से देखें तो समझना, हमें मिला है e टू द पावर sin x इज 2 प्लस और माइनस रूट 5. समझना, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में मिला था e टू द पावर sin x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 5 और 2 प्लस रूट 5. ओके, तो हमें ये तो पता है कि दिस विल बी सम नेगेटिव नंबर, ये आपका लेस देन 0 होगा. ओके, और ये आपका 2 प्लस रूट 5 है, वो ग्रेटर देन 2 4 होगा, ठीक है, या ग्रेटर देन e होगा. चलो, अब हमें ये पता है कि sin x, यहाँ पे e टू द पावर sin x ही है ना. ओके, हाँ, यस. चलो, अब मुझे ये बताओ sin x की वैल्यू -1 to 1 के बीच में है. ओके, अब आप e की पावर में कोई भी वैल्यू रख रहे हैं -1 to 1 के बीच में. सो अगर मैं दोनों जगह e अप्लाई कर रहा हूँ तो e टू द पावर -1 इज लेस देन और इक्वल टू e टू द पावर sin x इज लेस देन और इक्वल टू e टू द पावर 1. ओके, तो e टू द पावर sin x की वैल्यू 1/e से बड़ी होनी चाहिए और e से छोटी होनी चाहिए. e टू द पावर sin x की मैक्सिमम वैल्यू e हो सकती है 2.718 और मिनिमम वैल्यू 1/e होनी चाहिए. अब ये कंडीशन और ये कंडीशंस को ऑब्जर्व करो, तो यहाँ पे आपकी कंडीशन e टू द पावर sin x लेस देन और इक्वल टू e होनी चाहिए. व्हाट इज योर e? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.718, उससे कम होनी चाहिए, बट ये ग्रेटर देन 4 है, तो डेफिनेटली दिस इज नॉट पॉसिबल. ओके, फिर e टू द पावर sin x की मिनिमम वैल्यू 1/e होनी चाहिए, विच इज ओनली पॉजिटिव. ओके, 1/2.718 करोगे 0.5 समथिंग मिलेगा, तो वो पॉजिटिव ही आएगा, उससे कम मिलेगा, सॉरी, तो 0.5 से कम मिलेगा, बट वो पॉजिटिव ही आएगा. बट यहाँ पे अगर आप वो देखो तो वो नेगेटिव है. ओके, सो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल फ्रॉम हियर. तो आप दो तरीके से देख सकते हैं, आइदर आप ln में कन्वर्ट करके देख सकते हैं, आइदर आप e को e में रख के ही इस तरीके से चेक करके देख सकते हैं. तो यहाँ पे दोनों वैल्यू पॉसिबल नहीं है, दोनों वैल्यू पॉसिबल नहीं है, मतलब गिवन एक्सप्रेशन का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है. और वही आपको बोला था कि प्रूव दैट एक्सप्रेशन e टू द पावर sin x माइनस e टू द पावर माइनस sin x हैज नो सॉल्यूशन. ओके, तो यहाँ से हम इतना प्रूव कर सकते हैं कि इट इज नॉट हैविंग एनी सॉल्यूशन. इज इट क्लियर? I am repeating this question once again. समझना. Okay. So यहाँ पे आपको ये बोला गया है, yes, e to the power sin x minus e to the power minus sin x minus 4 equal to 0. Right? If it is there, e to the power sin x minus e to the power minus sin x minus 4 equal to 0, then show that this equation is having no solution. ठीक है, अब वो हम कैसे देख सकते हैं, तो समझना. तो सबसे पहले तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम कर गए हैं, इसके लिए आपको e टू द पावर जो माइनस साइन एक्स है उसको 1/e टू द पावर साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. देन it will become e to the power sin x whole square minus 1 minus 4 e to the power sin x is equal to 0. If I am assuming e to the power sin x is equal to y, so this will become y square minus 4y minus 1 equal to 0. Y square minus 4y minus 1 equal to 0. So here your a leading coefficient will be 1, b minus 4, c minus 1. So a equal to 1, b equal to minus 4, c equal to minus 1. So your determinant is equal to b square minus 4ac, which is minus 4 whole square minus 4a 1 c minus 1. It is 20. Not determinant, discriminant, my mistake. So y will be equal to minus b plus or minus under root delta by 2a. So minus of minus 4a plus or minus root 20 by 2 into 1. Okay. And एक मिनट, आपका टाइमिंग चेंज हुआ है क्या क्लास का? मतलब मुझे विष्णु सर बता रहे थे आपका टाइमिंग 11 to 12:30 हुआ है, एंड फिर नेक्स्ट क्लास जो आपकी 2 बजे शुरू होती थी वो 1:30 शुरू हो रही है. अच्छा,
मतलब ओके 1:30 नेक्स्ट क्लास, ओके ठीक है, टाइमिंग चेंज हुआ है, ओके। सो मैं पूछा, एक्चुअली मुझे दो रिस्पांस मिले, मैंने सर से पूछा तो मैंने बोला, सर ने मुझे बोला कि मेरा शेड्यूल रेगुलर ही है, जो मैं लेता हूँ वैसे ही लेना है, ठीक है, बट आपका क्लास 1:30 से, तो मैं 12 ये क्वेश्चन करके हम छोड़ देंगे, इसके बाद वाला एक क्वेश्चन और डाउट है ना होमवर्क का, वो 12 करूंगा, उसके बाद आपको क्लास एंड कर दूंगा, चलेगा? ओके, विल इट बी ओके? राइट, सो इट इज माइनस माइनस प्लस 4 प्लस और माइनस √4 5/2, तो वो आपका 2 √5/2 हो जाएगा, तो इट विल बी 2 प्लस और माइनस √5। अब आपको मिला है e⁻sin x इज इक्वल टू 2 प्लस और माइनस √5। अब ये पॉसिबल है कि नहीं, हमें वो देखना है। तो ये आइदर आप e को ही कंपेयर करके देख सकते हो, आइदर आप लॉग में कन्वर्ट करके देख सकते हो। आई थिंक e वाला इजी रहेगा। तो यहाँ पे आपकी पॉसिबल वैल्यूज हैं e⁻sin x इज इक्वल टू 2 माइनस √5 और e⁻sin x इक्वल टू 2 प्लस √5। सो 2 माइनस √5 आपका लेस देन 0 है एंड 2 प्लस √5 आपका ग्रेटर देन 4 है, बिकॉज √5 आपका ग्रेटर देन 2 है। अब आपको पता है कि sin x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही आएगी, तो अगर दोनों जगह पे मैं e बेस ले रहा हूँ, तो 1/e should be less than or equal to e⁻sin x should be less than or equal to e, which is 2.718। तो e⁻sin x आपका 1/e से 2.718 के बीच में होना चाहिए। ओके, सो मतलब वो 2.718 से कम होना चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वो ग्रेटर देन 4 है, तो ये पॉसिबल नहीं है। 1/e से बड़ा होना चाहिए तो पॉजिटिव होना चाहिए, इट इज लेस देन 0, सो इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ओके, सो हियर आपके दोनों आंसर पॉसिबल नहीं है। या अगर आप लॉग लेके कर रहे हैं तो e उधर जाएगा, तो वो लॉग हो जाएगा ln 2 प्लस √5 ln 2 माइनस √5। तो यहाँ पे तो 2 माइनस √5 आपका नेगेटिव हो जाएगा, इफ इट इज नेगेटिव तो लॉग पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन तो निकल जाएगा। अब 2 प्लस √5 को आप कंपेयर करें तो 2 प्लस √5 ग्रेटर देन 4 हो जाएगा, विच इज ग्रेटर देन e। तो उसका अगर आप ln ले रहे हैं तो इट विल बी ग्रेटर देन 1, और sin x की वैल्यू 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकती, sin x आपका -1 से 1 के बीच में है, तो sin x ग्रेटर देन 1 कैन नॉट बी पॉसिबल। तो आइदर आप ln लेके कर सकते हैं, आइदर आप e लेके कर सकते हैं। इज इट क्लियर? राइट, तो वो ln वाली मेथड और है, वो दिखाने के लिए मैं यहाँ पे बॉक्स कर देता हूँ। सो आइदर यू कैन यूज दिस मेथड, आप दोनों जगह लॉग लेके देख सकते हैं और आप e से कंपेयर कर सकते हैं। सो इज इट क्लियर नाउ? शैल वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 12 देखें, प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। ओके, तो वापस रिपीट कर दिया पूरा क्वेश्चन। Sure. So let us see your last doubt, that is homework question number 12. Okay. Solve for x sin 40 degree to the power 10x plus tan 3x. Is equal to sin square 2 pi minus x minus cos pi minus x into sin pi by 2 plus x. Okay. चलो यार, अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। चलो समझ रहे हैं यहाँ पे। सो sin 40 टू द पावर 10x प्लस tan 3x इज दिस, आपको x के लिए सॉल्व करना है। चलो शुरू करें। तो सबसे पहले तो क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, sin 40 टू द पावर 10x प्लस tan 3x, वी आर नॉट नोइंग sin 40, तो उसको एज इट इज रहने देते हैं। ओके, और उसके ऊपर है tan x प्लस tan 3x। tan 3x की फॉर्मूला है, पर एक्सपोनेंट्स में वो फॉर्मूला रखना विल बी सुसाइड, तो उसको भी फिलहाल एज इट इज रहने देते हैं। ओके, so your LHS will remain as it is, so therefore sin 40 to the power
tan x plus tan 3x will remain as it is. चलो is equal to sin square 2 pi minus x. So who will tell me about this 2 pi minus x? 4 steps आपको लिख रहे थे. Remember this all steps? Okay, step 1, identify the quadrant. So 2 pi minus 0, pi by 2, pi, 3 pi by 2, 2 pi. So 2 pi minus x, it is your fourth quadrant, right? A, S, T, C. But ये sin square है तो पहले आपको square बाहर निकालना पड़ेगा, समझना. So it will be your sin 2 pi minus x whole square. Okay, sin 2 pi minus x, तो 2 pi minus fourth quadrant में sin negative तो minus 2 pi on x axis, so it is sin, so minus sin x whole square. चलो minus cos pi minus x, चलो pi minus, if it is pi minus c, so 0 से pi में आप एंटी क्लॉकवाइज आओगे और pi minus means clockwise, so this is your pi minus second quadrant. Sin positive cos negative. Okay, so if it is cos pi minus x, तो सबसे पहले आपका यहाँ पे आ जाएगा वो नेगेटिव. Okay, this will be your minus. चलो फिर वो cos का cos रहेगा because it is x axis. चलो sin pi by 2 plus x, चलो pi by 2 plus, तो pi by 2 plus means second quadrant में sin positive, तो sin ही रहेगा. मतलब पॉजिटिव मीन्स साइन प्लस की प्लस रहेगी. एंड इफ इट इज पाई बाई 2 तो साइन का क्या हो जाएगा cos x. ओके, सो इफ आई सिंप्लीफाई माय RHS, सो इन RHS माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, दिस विल बिकम साइन स्क्वायर. ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, मतलब प्लस cos इंटू cos cos स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 1. सो देयरफॉर sin 4t टू द पावर tan x plus tan 3x is equal to 1. अब समझो यहाँ पे, तो जब भी आपके पास ऐसा एक्सपोनेंट फॉर्म हो, ओके, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में था 81 टू द पावर समथिंग इक्वल टू 3, 81 टू द पावर समथिंग इक्वल टू 27, तो वो वाले क्वेश्चन में आपने कैसे किया था? दोनों जगह सेम बेस आपने लाया था पहले, राइट? फिर सेम बेस को आपने कंपेयर किया था, मतलब उसकी पावर को कंपेयर किया था. तो सेम बेस वहां पे हमने 3 लाया था, तो यहाँ पे आपका सेम बेस क्या हो जाएगा? ओके, समझना ये 1 कैसे आ सकता है? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ sin 4t होल टू द पावर 0? क्योंकि किसी की भी मैं 0 पावर करूँ तो 1 हो जाएगा, isn't it? क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ? नहीं तो अगर ऐसा सोचने में प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ से सोचो कि sin 40 की मैं ऐसी कौन सी पावर लूंगा, राइट? विच पावर ऑफ sin 40? sin 40 एक नंबर ही होगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू ही होगी, राइट? तो sin 40 की मैं ऐसी कौन सी पावर लूंगा कि इसका आंसर 1 आएगा? एक ही ऑप्शन है 0. अगर sin 40 की 0 पावर होगी तो आंसर 1 आएगा, isn't it? So here ये पता चला ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे यही कैचिंग पॉइंट्स है. So tan x plus tan 3x is equal to 1. ये चीज पता चली. So here tan x plus tan 3x is equal to 1. ओके, चलो बस अब हमें यहाँ से सिंप्लीफाई करना है. ओके, सो tan x plus tan 3x is equal to 1. यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है. तो अब 2-3 तरीके से कर सकते हो. इधर आप tan x को उस तरफ लेके जाओ, ओ सॉरी 0 0 0, माय मिस्टेक. सो tan x plus tan 3x equal to 0. सो कोई भी एक को उस तरफ लेके जाओ. ओके, तो वहां से आप उसका जनरल सॉल्यूशन लिख के कर सकते हैं. इधर आप साइन कॉस में कन्वर्ट करके कर सकते हैं. ठीक है, बोलो किस तरीके से करना है? कोई भी एक को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो वो अच्छा रहेगा. ओके, हाँ वो भी कर सकते हैं ओवेश. दोनों तो मतलब tan 4x की फॉर्मूला बना रहे हैं ओवेश. ओके, 1 minus tan x tan 3x से. सो हियर tan 3x कैन बी रिटन एज, बट tan x उधर जाएगा तो माइनस tan x होगा, वहां पे फिर माइनस का आपको अंदर डालना पड़ेगा. सो हियर यू आर हैविंग 2-3 वेज. फर्स्ट वे माइनस tan x कर रहा हूँ, तो यू ऑल नो दैट क्योंकि tan के अंदर माइनस होगा, ओके, tan के अंदर माइनस होगा तो बाहर आ जाएगा. So it is tan minus x. So what is general solution of tan x? If I can write tan 3x is equal to tan minus x. Okay. So my x is equal to n pi plus alpha. Alpha is minus x. तो अब minus x इधर आ जाएगा. 3x minus x. 3x plus x. 4x is equal to n pi. If 4x is equal to n pi, x is equal to n pi by 4. Okay. Finish. Where your n belongs to I. This is the easiest method.
ओके इसके बाद आप अलग अलग मेथड कर सकते हो, बट आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट मेथड. So x is equal to n pi by 4, n belongs to I. Is it clear? Okay. Sir, if now Koshi is asking, sir, if it would be sin 90, then answer would be any value of x, right? It would be sin 90. यहाँ पे हाँ yes right. अगर यहाँ पे आपको क्वेश्चन में sin 40 की जगह sin 90 दिया होता, right? So this will be your sin 90 whole to the power 10x plus 10x. Yes. right, क्योंकि ये आपका एनी, अगर आप 1 की पावर का कोई भी वेरिएबल ले रहे हो, ठीक है, तो वो 1 आएगा, या कोई भी कांस्टेंट की पावर आप 0 ले रहे हो तो वो आपको 1 मिलेगा. सो अगर वो sin 90 होता तो आंसर आपको एनी वैल्यू ऑफ x आएगा. ओके सो इज इट क्लियर नाउ? हाँ ओवेश वो कर सकते हैं, वो मैंने बोला. ओके सो वो भी हो जाएगा. सर वी शुड राइट, हाँ, 2n plus 1 pi by 4 because if n is even the value changes. Yes. Okay, so if यहाँ पे आप n की अलग अलग वैल्यू रखोगे तो ये आपका होगा पाई बाई 4, 2 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 4 पाई बाई 4, ये आपका पाई हो जाएगा, ये आपका पाई बाई 2 हो जाएगा. इस तरीके से चलता जाएगा. ओके सो दिस इज योर पाई बाई 4, दिस इज योर पाई बाई 2. अब ये पाई बाई 2 तो पॉसिबल नहीं है, राइट, क्योंकि यहाँ पे तो आपके 10 डिफाइन नहीं होगा. सो यहाँ पे आपका n कोई भी इवन मल्टीपल नहीं हो सकता, आपको ऑड मल्टीपल ही लेना पड़ेगा. बट पाई तो पॉसिबल है ना, क्योंकि ऑड मल्टीपल लेंगे तो पाई भी निकल जाएगा, राइट. सो ओके सो अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू 2n plus 1 पाई बाई 4. ओके पाई बाई 4 के ऑल ऑड मल्टीपल्स, सो 1 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, राइट. तो यहाँ पे तो पाई बाई 2 आएगा, बट व्हाट अबाउट दिस 4 पाई बाई 4? ये भी नहीं आएगा ना, ये तो पॉसिबल है. चलो इसके ऊपर मैं सोचूंगा. एंड ओवेस इज आस्किंग सर नो आंसर फॉर साइन 0. अगर यहाँ पे साइन 0 होता तो वो 0 है, राइट. अब 0 की कोई भी पावर करो वो 0 ही आएगी. यस, तो नो आंसर फॉर साइन 0, राइट. ठीक है, अब इसके ऊपर मैं सोचता हूँ पाई वाली वैल्यूज के लिए. ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं. थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास. ओके, वो डिस्कस करेंगे अभिराम नेक्स्ट क्लास में, इट इज ऑलरेडी टाइम. ओके, थैंक यू एवरीवन. हाँ यस, सो वो देखता हूँ मैं.